Pratishta lagiya shatya achara Lubhata sadatami Pratishta lagiya shatya Lubhata sadatami Edanu jujana sajana vajita Aparadi nirantara Ehenu durjana sajana vajita Aparadi nirantara Shubhakaya shunya sada anatama Nanadukhe jara jara Shubhakaya shunya sada Shubhakarya shunya sadhanatama Nanadukhe jara jara Bhardakhe ekona upaya vipina Atena akinchana Bhardakhe ekona upaya vipina Atena akinchana Bhakti vinoda prabhurachara Kore dukha nivedana Bhakti vinoda prabhurachara Kore dukha nivedana Amara jivana sada papira Naiko punyera desha Amara jivana sada papira Naiko punyera desha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare We'll read the translation. I am an impious sinner and I have caused others great anxiety and trouble. पढ़िए क्या? I have never hesitated to perform sinful acts for my own enjoyment, devoid of all compassion, concerned only with my own selfish interest. I am remorseful, seeing others happy. I am a perpetual liar, and the misery of others is a source of great pleasure for me.
certain desire within the core of my heart are unlimited. I am grateful, devoted with small pride and arrogance, intoxicated by vanity and bewildered by worldly affairs. Envy and egoistic are the ornaments I wear. Fueled by laziness and sleep, I resist all five deeds, yet I am very active and enthusiastic to perform wicked acts. For worldly fame and reputation, I engage in the practice of deceitfulness. Thus, I am destroyed by my own deeds and always lost. Now in old age, deprived of all means of success, humbled and poor, Bhaktivinoda submits his tale of grief at the lotus feet of Supreme Lord. मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सगना रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखानुसंश्च श्रीकृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमोऽस्तुते लब्धकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Welcome all of you for today's Bhagavatam class. We are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, entitled as Creation, and chapter 8, titled as Prayers by Queen Kunti, text number 49. Please repeat after me. Baladvija Suhunmitra Pitur Bhatur Guru Daruha Gurudruha Nameshyan Nirayan Moksho He Api Varshayutaite Baladvija Suhunmitra Pitur Bhatur Gurudruha Nameshyan Nirayan Moksho He Api Varshayutaitai Bharadvija Suhunmitra Pitur Bhatur Gurudruha Nameshyan Nirayan Moksho He Api Varshayutaitai पढ़िए बोलिए
Word to word meaning, translation, and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada ki word to word meaning. Bala, boys. Dvija, the twice born. Suhrit, well wishers. Mitra, friends. Pitru, parents. Bhatru, brothers. Guru, preceptors. Druhaha, one who has killed. Na, never. Me, my. Syat, there shall be. Niryat, from hell. Moksha, liberation. He, certainly. Api, although. Varsha, years. Ayuta, millions. Ayuthai, being added. Translation. I have killed many boys, brahmanas, well wishers, friends, parents, preceptors, and brothers. Though I live millions of years, I will not be relieved from the hell that awaits me for all these sins. Purport. Whenever there is a war, there is certainly a massacre of many innocent living beings, such as boys, brahmanas, women, whose killing is considered to be the greatest of the sins. They are all innocent creatures, and in all circumstances, killing of them is forbidden in the scriptures. Maharaj Yudhishthira was aware of these mass killings. Similarly, there were friends, parents, preceptors also on the both sides, and all of them were killed. It was simply horrible for him to think of such killing. And therefore, he was of residing in hell for millions and millions of years. We will read all next remaining slokas as well. नैनोराज्ञा प्रजाभातु धर्मयुद्धे वधोद्विषम् इति मे नातु भूदाय कल्पते शासनं वच. There is no sin for a king who kills for the right cause, who is engaged in maintaining his citizens. But this injunction is not applicable to me. Yudhishthira Maharaj Yudhishthira thought that although he was not actually involved in the administration of the kingdom, which was being carried on well by Duryodhana without harm to the citizens, he caused the killing of so many living beings only for his personal gain of kingdom from the hands of Duryodhana. The killing was committed not in the course of administration but for the sake of self aggrandizement. And as such, he thought himself responsible for all the sins. स्त्रीणां मद्दातबन्धूनां द्रोहो असौ इहोत्थिता कर्माभिर्गृहमेधियाय नाहं कल्पो व्यपोहितुम्. I have killed many friends of women, and I have thus caused enmity to such an extent that it is not possible to undo it by material welfare work.
The Gruhamedis are those whose only business is to perform welfare work for the sake of material prosperity. Such material prosperity is sometimes hampered by the sinful activities. For the materialist is sure to commit sins, even unintentionally, in the course of discharging material duties. To get relief from such sinful reactions, the Vedas prescribe several kinds of sacrifices. It is said in the Vedas that by performing the Ashwamedha Yajna or sacrifice, one can get relief from the even Brahmahatya, killing of the Brahmana. Yudhishthira Maharaj performed this Ashwamedha Yajna, but he thinks that even by performing such yajnas, it is not possible to get a relief from the great sins committed. In the war, either the husband or the brother or even the father or sons go to fight. And when they are killed, a fresh enmity is created. And thus, a chain of actions and reactions increases, which is not possible to contracted even by thousands of Ashwamedha yajnas. The way of work, karma, is like that. It creates one action and another reaction simultaneously and thus increases the chain of material activities, binding the performer in material bondage. In the Bhagavad Gita 9.27 and 28, the remedy is suggested that such action and reactions of the path of work can be checked only when work is done on behalf of Supreme Lord. The battle of Kurukshetra was actually fought by the will of the Supreme Lord Sri Krishna, as it is evident from his version, and only by his will was Yudhishthira placed on the throne of Astinapura. Therefore, actually no sin whatsoever touched the Pandavas, who were only the order carriers of the Lord for the others, who declare the war out of personal interest. The whole responsibilities lies on them. यथा पंकेन पंकाम्बा सूर्या वा सुरकृतं भूतहत्यं तथैवैकं न यज्ञेर्मर्तुषम् अर्हति. As it is not possible to filter muddy water through the mud or purify a wine stained pot with the wine, it is not possible to counteract the killing of men by sacrificing animals. Ashwamedha yajnas or Gomedha yajnas sacrifices in which a horse or a bull is sacrificed were not, of course, for the purpose of killing the animals. Lord Chaitanya said that such animals sacrificed on the altar of yajna were rejuvenated and a new life was given to them. It was just to prove the efficacy of the hymns of the Vedic Vedas. By recitation of the hymns of the Vedas in the proper way, certainly the performer gets relief from the reaction of sin. But in case of such sacrifices improperly done under inexpert management, surely one has to become responsible for animal sacrifice. Jai Shri Radha Mother ki. Hmm. In this age of quarrel and hypocrisy, there is no possibility of performing yajnas. Maharaj Yudhishthira therefore gives a hint to performing sacrifices in the age of Kali. In the Kali Yuga, the only sacrifice recommended is the performance of Harinam Sankirtan Yajna, Harinam Yajna, inaugurated by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. But one should indulge in animal killing and counteract it by performing Harinama Yajna. But one should not indulge in animal killing and counteract it by performing the Harinam Yajna. Those who are devotees of the Lord never kill an animal for self interest. And as the Lord ordered Arjuna, they do not refrain from performing the duty of Kshatriya. The whole purpose, therefore, is served when everything is done for the will of the Lord,
This is possible only for the devotees. Thus ends the Bhaktivedanta purpose of the first canto, 8th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Prayers by Queen Kunti and Parikshit saved. Hmm. Right now the discussion is going here. The Maharaj Yudhishthir is stopping Lord Krishna to go back. Earlier, Maharani Kunti, she tried, she offered very wonderful prayers, and before that, Mother Uttara stopped. एक के बाद एक भगवान को रोकने प्रयास कर रहे वो हस्तिनापुर छोड़ के जाने के लिए। आप और रुकिए और थोड़ा रुकिए करके प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहले तो उत्तरा किया था, प्रार्थना किया परीक्षित महाराज को बचाइए करके जो अपने गर्भ में है। And afterwards, Maharani Kunti, she approached and she also requested Lord Krishna, please stay back with wonderful prayers. Most of the devotees, they pray Kunti Maharani prayers. And afterwards, and now the time came for Yudhishthira Maharaj. He is praying to Lord Krishna. But in his prayers, he is expressing his agreement, वो व्यथा है उनका जो है युद्ध करने के बाद वो सारे व्यक्त कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज implore departing Krishna by his lamentation. And these last few verses which talks about the lamentation of Maharaj Yudhishthir, listed from 48 verse onwards till end of the chapter, it describes how Yudhishthir Maharaj is feeling after the battle, Kurukshetra war. And we already heard in the Bhagavad Gita, before beginning of the Kurukshetra war, Arjuna was in a lamentation. And after the war, Yudhishthira is in lamentation. पहले भी है, बाद में भी है। कृष्ण भगवान को अभी फिर से भगवद गीता बोलने की जरूरी है ना? एक बार अर्जुन को बोल दिया, अर्जुन समझ लिया और युद्ध कर दिया और जीत लिया। और जीतने के बाद अब युधिष्ठिर महाराज दुखी हो गए। क्यों हुआ? भाई युधिष्ठिर महाराज feeling sorrow, why is in lamentation? If somebody wins the war, it should be uproarious. It should be, they should be happy, no? They're fighting for the kingdom, and when they win the war, there should be a time for jubilation. But now Yudhishthira Maharaj is lamenting. Why it is so? Because he is a devotee, yes. And more? Why is lamenting? That means devotees always laments or what? Huh? No, it's not right, right? Why? हाँ, सही सुना आपने। यस, युधिष्ठिर महाराज सोच रहे कि मेरे ही वजह से इतना सारे करोड़ों लाखों लोग मर गया। Yesterday in the verse it says many phalanxes of men. Yesterday Maharaj was quoting the exact number, very huge number. So many millions of soldiers, they are killed on the battlefield of Kurukshetra, both sides. All for the sake of enthroning Yudhishthira Maharaj, just for the sake of being a king, in the king position, to get the king position, to place the Yudhishthira Maharaj as a king, all these soldiers were sacrificed their lives in the battlefield. And everybody is doing their duty perfectly. And Yudhishthira Maharaj knows this also very well. If somebody kills, there is no sin for the king who kills for the right cause.
who is engaged in the maintaining his citizens. The 50th verse, Maharaj Yudhishthira is quoting same thing. He knows the Shastra. If a king kills any person, अगर राजा किसी को मार दिया किसी सही कारण की वजह से और राज्य को पालन करने के लिए, वो पाप में गिनती में नहीं आता। फिर भी महाराज युधिष्ठिर सोच रहे कि इतना करोड़ों लोग, इतना सारे लोग मर गया और इतना सारे विधवा हो गया, इतना सारे भाई बहनों और वेल विशर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सब लोग मेरे वजह से मर गए और मैं हमेशा के लिए, करोड़ों साल के लिए नरक में रहने के लिए मैं तैयार हूँ। युधिष्ठिर महाराज ऐसा पूरा अपना जो भी व्यथा है, लैमेंटेशन है, कृष्ण भगवान को बता रहे। और ये भी सोच रहे हैं कि दुर्योधन तो अच्छा पालन कर रहा था, कोई सिटीजन्स को कुछ हानि नहीं पहुंचा रहा था, है ना। Whoever it the king may be, if the citizens are there happy, is that matters? अगर कोई भी पार्टी भी रूलिंग पार्टी हो, क्या फर्क पड़ता है हमको? सारे जनता सुख शांति में रहे तो, है ना। कौन सा भी पार्टी होने दो, क्या फर्क पड़ता है। वही सोच रहे अभी इधर युधिष्ठिर महाराज भी सोच रहे, अरे कौन सा कोई भी राजा होने दो, क्या फर्क पड़ता है जब तक प्रजा अच्छा रहे तो। अभी दुर्योधन तो कोई किसी को ऐसा नहीं मार रहा था, प्रजा को तकलीफ नहीं दे रहा था। ऐसा भी सोच रहे युधिष्ठिर महाराज, और ये सोच रहे कि मेरे को राज्य गद्दी में बिठाने के लिए इतना सारे लोग मर गया और मार दिया। ऐसा भिन्न भिन्न धोरणी से युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे। अभी ऐसा सिचुएशन में कृष्ण भगवान समझाना पड़ेगा उनको, और समझा के आगे जाना पड़ेगा। अभी ये आगे के एक्ट जो है हमको बहुत बड़ा सीखने का इधर सीख मिलता है। कृष्ण भगवान ने पहले तो अर्जुन लैमेंटेशन में रहते तो पूरा भगवद्गीता बताया, बता के उनको समझाया, और समझाने के बाद क्या समझाया भगवान ने अर्जुन को? कुछ तो समझा है ना, इसलिए तो युद्ध किया। क्या समझाया उन्होंने? भगवद्गीता का एसेंस क्या समझ आया? हाँ, पूरा भगवद्गीता है ना, क्या समझाया अर्जुन को? हाँ, हम शरीर नहीं आत्मा है, और आगे सब ऑलरेडी मर चुके हैं, मैं ही मार दिया हूँ, अब जो क्रेडिट लेना। क्या क्या समझा दिया? एसेंस क्या है? हाँ, सारे छोड़ दो, सरेंडर हो जाओ। लेकिन कुछ सरेंडर होने के बोले, लेकिन करने के कुछ तो बोलना चाहिए ना। मन मनावा मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, वो दोनों श्लोक मेरे भक्त बनो, मैं जो बोलता हूँ वो करो। अर्जुन ने क्या बोला था लास्ट में? नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मया अच्युता, मेरे सारे मोह नष्ट हो गया, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। अभी हो गया, युद्ध हो गया। अब युद्ध किसके कारण से हुआ? हाँ, भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो द्रौपदी को क्या बोलते हैं,
इनफेम वस्त्रापहरण करने की कोशिश किया, लेकिन उसका एग्जैक्ट वर्ड क्या था कि डिफेम किया था। डिफेम, एक स्त्री को नीचा करके देखने और ऐसा एक्ट किया तो भगवान सहन नहीं करेंगे। और शास्त्र भी हमको बहुत कठोर से शिक्षा देती है। कृष्ण भगवान ने ये सही नहीं पाया कि एक स्त्री को ऐसा डिफेम किया जाए तो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ये किया, ये असत सभा को पूरा को हटाना है, उसको पूरा खत्म करना है। जो भी असत लोग बैठे हैं उसको सबको नष्ट करना है। ये वन ऑफ द पर्पस, भगवान आविर्भाव करने का ये भी एक पर्पस है ना। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को स्थापन करने के लिए और असुरों को मिटाने के लिए भगवान आते हैं। और इधर सारे असत लोगों को हटाने के लिए भगवान ने एक योजना रचना बनाई। ये है कुरुक्षेत्र युद्ध। अभी भगवान के विल से ये सारे युद्ध रचाए गए और युद्ध हो गए। अब युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर लैमेंट हो रहे, और युधिष्ठिर तो लैमेंट होने का, लैमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? शोक, विलाप। विलाप तो रोना होगा ना, ठीक है, विलाप, शोक। हाँ, अभी युधिष्ठिर महाराज शोक में है। अभी युधिष्ठिर ऐसा भौतिक दृष्टिकोण से जगह तो सही है, अपने को राज्य गद्दी में बिठाने के लिए इतना सारे लोगों को मारना उचित नहीं है। जो कोमल हृदय स्वभाव वाले युधिष्ठिर महाराज जरूर सोचेगा मेरे वजह से इतना पाप हो गया, मैं नरक में रहने के लिए तैयार हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? युधिष्ठिर महाराज को ऐसा हृदय दौर्बल्य क्यों लेके आया भगवान ने? अर्जुन को तो भगवान ने ये हृदय दौर्बल्य में डाला था, क्यों? हमको भगवद्गीता देने के लिए, सारे जनता को भगवद्गीता देने के लिए अर्जुन के हृदय में भगवान ने हृदय दौर्बल्य डाला, जो लैमेंटेशन फॉर हिज किन्समैन वो डाल दिया। अभी युधिष्ठिर महाराज को ऐसे क्यों कर रहे हैं भगवान? खत्म हो गया ना अभी उनको क्यों ऐसे मन में ऐसे भावना क्यों उत्पन्न करा है भगवान? हाँ, यस, सेटिंग द सीन बैकग्राउंड, सही बोला। भगवान एक रचना बनाए। अभी इधर एक शिक्षा दे रहे भगवान, अपने से बड़े को कैसे शिक्षा देना चाहिए। अभी भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से बड़े हैं। जब भी कृष्ण के पास दोनों को मुलाकात होती तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज का पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हाय हरे कृष्णा ऐसा नहीं बोलते हैं, जाके प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं हर बार। फिर अभी उनका मन में ऐसा है, युधिष्ठिर मन में अभी कृष्ण भगवान को सांत्वना देना चाहिए, अभी उनको पैसिफाई करना चाहिए। कृष्ण भगवान पैसिफाई करते तो युधिष्ठिर महाराज सुनने का मूड में है क्या? वो सुनने के मूड में नहीं है। और खास करके अपने बड़ों के लिए समझाना मुश्किल है, इट्स नॉट एटिक्वेट। अभी कृष्ण भगवान ने सोचा कि मैं नहीं, युधिष्ठिर महाराज को सिखाने वाले एक है, एक व्यक्ति है, वो है भीष्म पितामह, और उनके पास ले जाता हूँ और भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को सिखाएंगे, सांत्वना देंगे क्या है। और उतना ही नहीं, भगवान भीष्म पितामह का महत्व बढ़ाना चाहता है। ऐसा है कि
जो कृष्ण भगवान नहीं समझा पा रहे युधिष्ठिर महाराज को, भीष्म पितामह ने समझा दिया। इससे पता चलता है कि कृष्ण से ही बड़े हैं भीष्म पितामह। भगवान ये एस्टेब्लिश करना चाहता है कि अपने भक्त भगवान से भी बड़े हैं, और ये भी एक सिद्धांत को स्थापित करने के लिए भगवान ये लीला रचा है। ऐसा हम सोचते रहेंगे ना, बहुत अच्छा अच्छा तत्व बाहर निकल के आए। इसलिए मैं सारे जितना भी वर्ष है आज पूरा पढ़ लिया था। आगे जाके अगले चैप्टर में भीष्म पितामह वो तीर का बना हुआ शैया पे लेटकर और युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा देते हैं, अलग अलग शिक्षा देते हैं, वर्णाश्रम के बारे में, पुरुषार्थ के बारे में, धर्म के बारे में, अलग अलग सब बताते हैं। और लास्ट में भागवत धर्म के बारे में बताते हैं, और सब बताने के बाद बोलते हैं कि सबसे अच्छा है भागवत धर्म, यही पालन करना है करके। और बाद में प्रैक्टिकल भी दिखाते हो, अपने खुद का लाइफ एग्जाम्पल प्रैक्टिकल दिखाते हैं कैसे एक व्यक्ति भागवत धर्म पालन करना चाहिए, और शरीर त्याग करने का एक शिक्षा और लीला रचाते हुए। ये सारे चीज भगवान की विल से, विल ऑफ द लॉर्ड, भगवान की प्रेरणा से ही सब लीला हो रही। ऐसा नहीं कि कर्म की वजह से हो रहा है। कर्म की वजह से देखा जाए तो ही नीड टू पश्चाताप, प्रायश्चित करना चाहिए। इतना सारे सिन हो गया, इतने सारे लोगों को मार दिया, इसके लिए प्रायश्चित कुछ तो होना चाहिए। प्रायश्चित के लिए अश्वमेध यज्ञ तो किया, लेकिन फिर भी पैसिफाई नहीं हुआ। और अश्वमेध यज्ञ में काफ़ी सारे पशुओं को बलिदान देना होता है। अश्वमेध यज्ञ में तो घोड़े को देना होता है, गोमेध यज्ञ में तो बैल या गाय को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वो सारे करके और यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करके ये सारे पाप से मुक्त बनता है। और उतना ही नहीं, वो सारे यज्ञ में इतना सारे जीव राशि को इसलिए सैक्रिफाई किया, बलिदान दिया जाता है कि वो चेक करते हैं, जो ब्राह्मण जो मंत्र सीखा है कि सही बराबर काम चल रहा है कि नहीं, ये बराबर उच्चारण कर पा रहे कि नहीं, बराबर रिजल्ट आ रहे कि नहीं, वो सारे चेक करने के लिए ये यज्ञ किया जाता है। इसलिए कि प्रैक्टिकल, सारे थियरी सीखने के बाद प्रैक्टिकल करते हैं ना, वैसे ही ये यज्ञ जो भी है प्रैक्टिकल जैसा है। और खास करके सारे यज्ञ जो है भगवान के प्रसन्नता के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रायश्चित अटोनमेंट के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज हमारा ये भजन गाया था, ये भजन में भी खुद का जीवन के बारे में हर एक कोई कंटेम्पलेट किया, तो आज के भजन में जो गाया था हम लोग सबके साथ ये होता है, एवरीबडी इज एंगेज्ड इन सिंफुल एक्टिविटीज, उनके बढ़ के कोई बड़ा पाप नहीं मिलेगा। एंड वो कभी भी संकोचित नहीं कर रहे थे कि पाप नहीं करने के लिए, हमेशा तैयार रहते पाप करने के लिए। हाँ, और ऐसा कलयुग के प्रभाव से सब लोग को अंदर दया, जाली, करुणा, ये सब जो है ख़त्म होते जा रहा है, और सेल्फिश मोटिव बढ़ते जा रहे हैं। सेल्फ इंटरेस्ट इतना बढ़ते जा रहा है कि बगल में अपने पारिवारिक का संबंधित कोई भी बैठा हो उसको ध्यान भी नहीं देते, इतना सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ गया है सबको। अगर मन के अंदर बहुत गहरा से देखा जाए तो एक एक का सबका मन के अंदर इतना मिथ्या अहंकार भर भर के है कि वो बहुत मदमत्त हो जा रहे हैं उसमें, मिथ्या अहंकार में।
और इतना होने के बावजूद अपना भौतिक कार्य करने में लगे रहते हैं। और कैसे लगे रहते हैं? एनवी एंड ईगोटिज्म, उसके साथ हमेशा द्वेष की भावना से जो वर्ल्डली अफेयर है वो करते रहते हैं। रून्ड बाई लेजीनेस एंड स्लीप, आई रेसिस्ट ऑल पायस डीड्स। लेजीनेस और स्लीप के कारण वो सारे पायस एक्टिविटीज को करने के लिए नहीं आगे आते हैं। लेकिन जो विकेड एक्ट्स, सिंफुल एक्ट्स करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसकी वजह से उनके अंदर एक डिसेटफुलनेस, डुप्लिसिटी नेचर उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है, और इसके कारण वो हमेशा सोच में, संकोच में रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है करके, और वैसे ही जीते रहते हैं, और कभी भी वो आध्यात्मिक जीवन की तरफ दिखता भी नहीं। वैसा हर एक इंसान का आजकल वो जीवन शैली बन गया। उसको मिटाने के लिए हम जरूर ये भागवत तत्व, भागवत धर्म सबको समझाना चाहिए और सबको देना चाहिए। वो सबको देने के लिए सरलता उपाय क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद जी भी बहुत जोर देते हैं कि ये सारे ग्रंथ जो है, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, अन्य ग्रंथ सब हर एक के पास होना चाहिए, और खुद पढ़ना चाहिए और दूसरों को पढ़ाना चाहिए। यही कलयुग का युग धर्म, नाम संकीर्तन। जब ऐसा होगा तब जाके ये खली का प्रभाव, ये जो पाप का भांडागार है हमारे पास, वो खत्म हो जाएगा। नहीं तो हम हमेशा के लिए यही पाप कार्य में व्यस्त रहेंगे। इसलिए हमारे ऊपर एक कर्तव्य बनता है कि जरूर ये सारे ग्रंथ पढ़े और पढ़ाए। और खास करके अगले महीने में अभी मैराथन आने वाला है, हम जरूर इस जोश के साथ हमेशा प्रभुपाद जी ग्रंथ अध्ययन करें और वितरण करें। मैं इधर ही विराम करता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव, गौ प्रेमानंदी।